Hello friends, you are watching Brainstorm YouTube channel, and today we will going to learn about modern periodic table, which is a very easy and interesting chapter. So before starting the video, don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon to get all our new notification. So let's start. Basically, in modern periodic table, all the elements are arranged according to their increasing order of atomic numbers. Means there are total 118 elements in modern periodic table, and all these elements are arranged according to their increasing atomic number. And there are total 7 rows in modern periodic table and 18 vertical columns. Beside these 7 rows and 18 vertical columns, there is two series present at the bottom of modern periodic table known as lanthanide series and antonide series. So, modern periodic table consists of 4 blocks. First one is S block, second one is P block, third one is D block, and the last F block. Now, S block is present at the LHS of modern periodic table. P block is present at the RHS of modern periodic table. D block is present in between the S block and P block, and F block is present at the bottom of modern periodic table. यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि एस ब्लॉक सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, पी ब्लॉक राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, डी ब्लॉक एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट है, ये एस पी डी, और एफ ब्लॉक बॉटम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इधर है. सो अभी हम स्ट्रक्चर फिर से देखते हैं, एक सेकेंड. हाँ, so S block is present at the LHS of modern periodic table. This is S block. P block is present at the RHS of modern periodic table. This is P block. D block is present in between S block and P block. हाँ, हमने ये भी देखा था कि D block S block और P block के बीच में प्रेजेंट है, और लास्ट F block is present at the bottom of the modern periodic table. So now we will study the physical properties and periodic trends of modern periodic table, in which first is atomic size, second one is electronegativity, third one is ionization enthalpy, fourth one is inert pair effect, fifth one is oxidation state, sixth one is metallic characteristics, and the last chemical reactivity. अब हम ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को सारे डिटेल में पढ़ेंगे. तो अब हमारा पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज. नाउ हियर एटॉमिक साइज इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. यानी हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस दोनों भी एक ही टर्म है. और एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस यानी क्या होता है? द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल is called as atomic radius. Means the distance from the center of nucleus का center and outermost shell is called as atomic radius. यानी center of nucleus से जो outermost shell का distance होता है, यानी ये distance, इसे हम atomic radius कहते हैं, और इसका यूनिट है पिकोमीटर. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, फर्स्ट वन है नंबर ऑफ शेल्स, सेकेंड वन है न्यूक्लियर चार्ज. अभी हम इसके फैक्टर्स देखेंगे एटॉमिक साइज के नेक्स्ट स्लाइड में. सो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम LHS टू RHS जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, और हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होते हैं. क्योंकि LHS टू RHS जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी शेल में इंक्रीज होते हैं. अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए तो वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, इसलिए एटम की साइज़ कम होती है. और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, एक एडिशनल शेल ऐड हो जाती है एलिमेंट में, उसके कारण द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. सो the first factor now is number of shell which affecting atomic size. Now here number of shell is directly proportional to atomic size. अगर number of shells बढ़ेंगे,
हमारा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेंगे, क्योंकि द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल विल बी इंक्रीज. सो द रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एंड द ट्रेंड्स आर इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी टॉप से बॉटम को एटॉमिक साइज इंक्रीज होते हैं. एंड इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम LHS टू RHS एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम LHS टू RHS. अभी हमारा सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज. नाउ व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर चार्ज? अगर कोई भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो वो न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देगा, और जब वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देगा तो एटम की साइज डिक्रीज होंगे. मीन्स इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन एन एटम मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड द रिलेशन हियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. हमारा सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself is called as electronegativity. Means when an atom attracting shared pair of electron from another atom, इसको ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा कहते हैं. मीन्स कोई भी एटम खुद के तरफ अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे कहते हैं, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है. Now, the first factor affecting electronegativity is atomic size and the second one is nuclear charge. हाँ, और यहाँ पर कोई भी एटम अगर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा होगा तो हम उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अभी हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं NaCl. अगर NaCl का डिसोसिएशन हुआ वाटर में तो हमें क्या मिलता है? Na+ और Cl-. यहाँ पर क्लोरीन एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इट अट्रैक्टिंग शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम. यानी क्लोरीन यहाँ पर सोडियम के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ. सो अभी हमारा फर्स्ट फैक्टर देखते हैं एटॉमिक साइज. नाउ इफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. मतलब अगर एटॉमिक साइज बढ़ गई तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, वो लूज कर देता है, क्योंकि बहुत लूजली बॉन्ड हो जाता है अपने न्यूक्लियस से. अगर फिर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. अगर एटॉमिक साइज कम होगी, बहुत छोटी होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है ज़्यादा, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. मीन्स from top to bottom as atomic size increases electronegativity decreases, and from LHS to RHS atomic size decreases and electronegativity increases. So हमारा सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज. अब न्यूक्लियर चार्ज यानी क्या होते हैं? किसी भी एटम में कितनी इलेक्ट्रॉन है उसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो एटॉमिक साइज कम हो जाती है. मतलब अगर एटॉमिक साइज कम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है. फिर अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है. यानी यहाँ पर रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज. मीन्स इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस electronegativity also increases, and the trends in modern periodic table of electronegativity is electronegativity decreases from top to bottom because atomic size decreases, and increases from LHS to RHS because atomic size decreases. Now here our third physical and important property is ionization enthalpy. आपने ये टर्म 10th स्टैंडर्ड तक नहीं देखी होगी कहीं पे भी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. So now what is ionization enthalpy? The amount of energy required to remove, यहाँ पर remove लिखना भूल गया मैं, remove valence electron from an isolated gaseous atom from its ground state is called as ionization enthalpy. मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है. कौन से भी एटम से उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, कौन से भी एटम से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बाहर,
वो जो एनर्जी लगती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने को कौन से भी एटम से, उससे ही हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, कौन से भी एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है हमें, उसे ही हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कहते हैं। और इसका यूनिट है किलोजूल पर मोल। नाउ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कौन सी भी एटम से जो एनर्जी लगती है हमें, उसे ही हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे कहते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। यहाँ पर I.E मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और द थर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी लगती है हम उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी लगती है हम उसे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और लास्ट द थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी लगते हैं हम उसे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे बोलते हैं। सो नाउ ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ऐसे कहते हैं। अगर यहाँ पर देखो, अगर एक एटम है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो ताकत लगती है उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये तीनों में से इलेक्ट्रॉन कौन सा मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ताकत लगेंगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। वीडियो पॉज करके आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो इजीली निकल जाता है और ऐसा बन जाता है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे एटम पे और 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहेंगे। अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ज़्यादा ताकत लगेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन को। सो थोड़ी ज़्यादा ताकत लगेगी और चार्ज हो जाएगा, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और बीच में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और लास्ट में थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी लगेंगी ना वो खूब लगेंगी, मतलब खूब ज़्यादा लगेंगी। और यहाँ पर क्योंकि ये 2 पॉजिटिव जो चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे ही नहीं, इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेंगी। तो हमारा आंसर है थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो नाउ अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर कौन से भी एटम का साइज बड़ा होगा, मतलब एटॉमिक साइज ज़्यादा होगी, तो वो एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी लगेंगी वो कम लगेंगी। और कौन से भी एटम का साइज अगर छोटा होगा तो वो एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने को एनर्जी ज़्यादा लगेंगे। सो योर एटॉमिक साइज ज़्यादा रहेंगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेंगे, और एटॉमिक साइज कम रहेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेंगे। सो द रिलेशन हियर इज एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यस, क्योंकि साइज बढ़ जाती है टॉप टू बॉटम और एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कम लगती है। और सेकेंड हमारा इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम LHS टू RHS। यस, क्योंकि अगर हम LHS टू RHS जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम हो जाती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो नाउ व्हाट इज मीन बाय इनेट पेयर इफेक्ट? The electron pair present in outermost s atomic orbital remains paired। मतलब जो s atomic orbital में के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो पेयर में ही रहते हैं। मतलब s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है और ये दोनों भी पेयर में होते हैं। अगर ये जोड़ी पेयर में ही होगी, अलग नहीं होगी, तो इसे ही हम इनेट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन की पेयर अलग हो गई या फिर एक्साइटेड हो गई ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो हम उसे इनेट पेयर इफेक्ट नहीं कह सकते। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है, हेवियर एलिमेंट शो स्ट्रॉन्ग इनेट पेयर इफेक्ट। हेवियर एलिमेंट्स यानी जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है वो इनेट पेयर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है पी ब्लॉक का ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में टोटल 5 एलिमेंट्स है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सो
यहाँ पर देखो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सबके वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और बोरॉन का यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1, गैलियम का 4s2 4p1, इंडियम का 5s2 5p1 एंड लास्ट थैलियम का 6s2 6p1। सो यहाँ पर देखो अगर इलेक्ट्रॉन बोरॉन में 2 मतलब s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p ऑर्बिटल में इजीली जा सकते हैं। सेम केस एल्यूमिनियम में भी है, 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3p में इजीली जा सकता है। मतलब यहाँ पर बोरॉन और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन की पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर p ऑर्बिटल में इजीली चला जाता है। मतलब ये जोड़ी नहीं रहती, ये जोड़ी टूट जाती है। सो हम इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं कह सकते। सो इन p ब्लॉक ग्रुप 13 बोरॉन एंड एल्यूमिनियम डज नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन केस ऑफ गैलियम 4s का इलेक्ट्रॉन अगर 4p के ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करेगा तो उसे 3d का लंबा फासला तय करना पड़ेगा, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इजी नहीं होता क्योंकि बहुत सारी एनर्जी लूज कर देता है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा नहीं सकता। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयर 4s2 के वो पेयर ही होती है। मतलब यहाँ गैलियम में इलेक्ट्रॉन की पेयर टूटती नहीं, मतलब गैलियम शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन केस ऑफ इंडियम 5s का भी इलेक्ट्रॉन 5p में नहीं जा सकता क्योंकि उसे 4d का लंबा फासला तय करना पड़ेगा। सो 5s का इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर ही रहेंगे, जोड़ी में ही रहेंगे और वो जोड़ी टूटेंगी नहीं इलेक्ट्रॉन की। सो इंडियम ऑल्सो शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन केस ऑफ थैलियम 6s का इलेक्ट्रॉन 6p में जा ही नहीं सकता क्योंकि या तो बहुत ही लंबा फासला है 2 ऑर्बिटल बीच में। सो थैलियम ऑल्सो शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट, बट थैलियम बहुत स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है क्योंकि उसके बीच में 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर दिखता है। और हमने कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखा था, हेवियर एलिमेंट शोज स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर थैलियम का मास ज़्यादा है, एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो वो हेवियर एलिमेंट है और वो स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखा रहा है। तो आवर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन स्टेट। Now what is oxidation state? The capacity to donate or accept electron is called as oxidation state. मतलब कोई भी एटम कितनी इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर कितनी इलेक्ट्रॉन देता है उस पर ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निर्भर होती है। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पे मतलब रेडॉक्स रिएक्शन पे पूरा एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा कंसेप्ट क्लियर करना होगा तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी। सो यहाँ पर एग्जांपल है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1 एंड मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उस पर +2 चार्ज आता है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। सो फिजिकल प्रॉपर्टी इज केमिकल रिएक्टिविटी। नाउ हियर केमिकल रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बढ़ गई तो केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी और एटॉमिक साइज कम हो गई तो केमिकल रिएक्टिविटी भी कम होगी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो नाउ इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है टॉप से बॉटम एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम LHS to RHS and atomic size also decreases. Now where we ended all physical properties and periodic trends of modern periodic table, and now we are going to start with blocks of modern periodic table, in which first is S block. Now what is meant by S block? The element whose valence electron enters in S orbital is called as S block element. मतलब जो भी एलिमेंट्स के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में एंटर हो गए या फिर S ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो गए उसे ही हम S ब्लॉक एलिमेंट ऐसे बोलेंगे। फॉर एग्जांपल लिथियम हम लेते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, मतलब लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1 और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s1। मतलब यहाँ लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में एंटर हो चुका है या फिर प्रेजेंट है, इसलिए लिथियम बिलोंग्स टू
एस ब्लॉक एलिमेंट, मतलब सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एस ऑर्बिटल में एंटर होते हैं, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए वो सारे एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट ऐसे कहते हैं। और वी ऑल्सो नो डैट एस ब्लॉक is present at the LHS of modern periodic table, and it consists of two groups. First one alkali metals and second one is alkaline earth metals. ये हमारा alkali metals है और ये हमारा alkaline earth metals है। alkali metals में टोटल 7 एलिमेंट्स है। फर्स्ट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांशियम। And in alkaline earth metals there is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium एंड रेडियम। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट है, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि उनकी एटॉमिक साइज लार्ज होती है इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। एंड अब हमारा नेक्स्ट ब्लॉक होगा पी ब्लॉक। नाउ सेम कंसेप्ट पी ब्लॉक में भी है। द एलिमेंट्स हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में एंटर होता होगा या फिर प्रेजेंट होगा, उसे ही हम पी ब्लॉक एलिमेंट से कहेंगे। और इट इज़ प्रेजेंट एट द RHS ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हमें पता है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। फर्स्ट वन इज ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 फ्लोरीन फैमिली एंड लास्ट ग्रुप 18 नियोन फैमिली। अब हम उसका टेबल देखेंगे। हाँ, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक यहाँ पर सारे एलिमेंट्स है और हम ये हमारा पी ब्लॉक है। हमें पता है कि ग्रुप 18 में सारे नोबल गैसेस प्रेजेंट है और ये एक लौता ब्लॉक है पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिसमें सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट ब्लॉक इज डी ब्लॉक। सेम कंसेप्ट जैसे एस और पी ब्लॉक में था वैसे ही डी ब्लॉक में है। द एलिमेंट हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जो भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में एंटर होता होगा तो हम उसे डी ब्लॉक एलिमेंट से बोलेंगे। इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 12, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट ऐसे कहते हैं। दिस एलिमेंट शोज डी डी ट्रांजिशन। ये सारे एलिमेंट डी डी ट्रांजिशन दिखाते हैं और कलर्स अलग अलग कलर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम ग्रुप डी ब्लॉक का टेबल देखेंगे। ये हमारा एस ब्लॉक था, यह हमारा पी ब्लॉक था और डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट था। सो ये हमारा डी ब्लॉक है। तो अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट ब्लॉक है एफ ब्लॉक। सेम कंसेप्ट हियर ऑल्सो। द एलिमेंट हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ब्लॉक ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब जो भी एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में एंटर होता होगा तो हम उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से बोलेंगे। इट इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो सबसे बॉटम पे प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। And it consists of 2 series. First one is Antoinette series and the second one is Actinide series. Antoinette series has larger atomic size and more reactive, and Actinide series has smaller atomic size and less reactive. And most of F block elements are radioactive. हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स फ्रॉम F ब्लॉक आर रेडियो एक्टिव। एंड लास्ट में उसका टेबल दिया गया है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।